Dear students, today we will discuss the simultaneous and iterated limits of a function of two variables. If fxy is a function of two variables x and y, we can define a definite several kind of limits. If ab is the limiting point of set of values on the two-dimensional space, then we have limit of fx as x plus to a and y plus to b. Or we can write this limit as limit of fxy as xy approach to ab, or limit of fxy as y approach to b, and limit of this function as x approach to a. इसनूं ਅਸੀਂ repeated limit ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। इसनूं ਅਸੀਂ simultaneous limit ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। when both x and y simultaneously approach ab point, then we say that this is the simultaneous limit of function fxy। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ f ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ when y approach to b, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਅਸੀਂ when x approach to a। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ repeated limit ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, limit as x approach to a, limit as y approach to b of fx is equal to fxy। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ b ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ a ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, then y approach to b। these two limits are repeated limits or iterated limits। ਆਈਟਰੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਏ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇ ਐਗਜਿਸਟ ਬਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ y b ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ y ਅਪਰੋਚ ਟੂ b। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟੂ ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇ ਐਗਜਿਸਟ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਮੇ ਨਾਟ ਐਗਜਿਸਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਈਟਰੇਟਿਡ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। If simultaneous limit exists and the two iterated limits exist, then they must be equal। ਜੇ simultaneous ਤੇ iterated limits ਦੋਨੋਂ exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ equal ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ next ਹੈ criteria for non existence of simultaneous limit। ਤਾਂ simultaneous limit ਕਦੋਂ exist ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? Suppose y is a function of x and y is also a function of x, y is equal to phi x, y is equal to psi x, such that limit of phi x when x approach to a is equal to limit of psi x when x approach to a is equal to b, and limit of ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ fx phi x, limit of this function fx phi x as x approach to a is not equal to limit of f x psi x when x approach to a, then this simultaneous limit does not exist। In general, it is very difficult to determine whether the simultaneous limit exists or not. However, it is, if exists, then this limit is independent of path along which we approach the point AB। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ point ਹੈ AB। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ x ਪੁਆਇੰਟ xy ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ AB ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਥ ਨੇ xy ਤੋਂ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AB ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ
तो फंक्शन की जी लिमिट है वो पाथ के उपर डिपेंड ना करे तो असीं कहांगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वेर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। तो असी शो करना है कि द टू आइडेंटिकल लिमिट्स एंड एग्जिस्ट बट साइमल्टेनियस एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले असी ये लवांगे एक्स प्लस टू 0 वाई प्लस टू 0 ऑफ एफ एक्स, इस असी लवांगे दूसरी लिमिट है ये पहला एक्स 0 अप्रोच करता है दैन वाई अप्रोच टू 0। तो असी पहली लिमिट जिहदे असी वाई अप्रोच करते हैं 0 तो लिमिट ऑफ लिमिट एफ एक्स वैन एक्स अप्रोच टू 0 वाई अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वन वाई अप्रोच टू 0 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। तो क्योंकि वाई 0 अप्रोच करता है तो ये 0 हो गया तो की बचेगा एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर की कैंसिल हो गया 1 आ गया तो जो एक्स 0 अप्रोच करता है तो लिमिट क्या आएगी 1। दूसरी लिमिट आइडेंटिकल लिमिट ये पहला एक्स 0 अप्रोच करता है तो असं लैंने एक्स 0 अप्रोच करता है तो एक्स 0 हो गया एक्स 0 होने नाल की हो गया साडे कोल की बचा माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर ये कैंसिल हो गया कितना आया -1 वाई अप्रोच टू 0 इस लिमिट की वैल्यू की आ गई -1। दोनों लिमिट्स आइडेंटिकल लिमिट्स एग्जिस्ट कर दी ने बट इक्वल नहीं हैगियां। हुण असीं साइमल्टेनियस लिमिट करते हैं। सपोज असी अप्रोच करते हाँ 0 0 नूं अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू mx तो असी इस वैल्यू पुट करिए y इज इक्वल टू mx तो दिस लिमिट बिकम्स इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोच टू 0 एक्स स्केयर माइनस m स्केयर एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस m स्केयर एक्स स्केयर। नंबरेटर से डिनोमिनेटर चो एक्स स्केयर कॉमन आ गया कैंसिल हो गया सारे कोल की बचा लिमिट एज एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस m स्केयर अपॉन 1 प्लस m स्केयर। m इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट therefore the value of the limit depends upon the value of m so for different values of m the limit of the function will be different। तो इसका मतलब ये होया कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट यूनीक लिमिट नहीं है इस करके असीं कह सकते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट m की वैल्यू के उपर डिपेंड करती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m तो फंक्शन की लिमिट्स डिफरेंट होंगी यूनीक लिमिट नहीं होएगी इस करके इसकी इस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट जी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। नैक्सट है साढ़े को फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 वाई स्केयर इसकी कोई लिमिट नहीं है एज एक्स वाई अप्रोच टू 0। असी सपोज असी अप्रोच करते हाँ एक्स वाई पॉइंट तो 0 0 नूं वाया वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर ये असी वैल्यू किवें लैनी हुंदी है वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर ये असी इस तरह लैनी हुंदी है कि नंबरेटर ते डिनोमिनेटर दे विचों एक्स की कोई पावर कॉमन आ जाए सेम पावर जे असी वाई इज इक्वल टू एम एक्स लवांगे तो साडे कोल जे असी वाई इज इक्वल टू एम एक्स लैने आ तो साडे कोल एफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी 2x स्केयर वाई इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई स्केयर यानी कि एम स्केयर एक्स स्केयर। हुण असीं देखिए तो नंबरेटर दे विच तां कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब एक्स स्केयर एक्स क्यूब आ गया नंबरेटर दे विच इत्थे एक्स की 4 पावर है इत्थे एक्स स्केयर है तो सानू की पुट करना चाहिए सी इस तरह कुछ पुट करना चाहिए सी वाई की वैल्यू तो जो एक्स की पावर 4 जी है नीचों कॉमन आ जाए तो असी वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर पुट करांगे तो एक्स इस पर 4 आ जाएगी तो ऊपर भी एक्स स्केयर आ जाऊगा तो इस नाल की होएगा उपरों एक्स की पावर 4 कॉमन आ गई नीचे भी एक्स की पावर 4 कॉमन आ गई कैंसिल हो गया तो की बचा साढ़े को m 2m अपॉन 1 प्लस m स्केयर तो ये लिमिट जी है
इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ m के उपर डिपेंड करती है, तो इस फंक्शन की लिमिट यूनीक नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m जी लिमिट की वैल्यू जी हैगी वो डिफरेंट होएगी, इस करके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। A function is said to be continuous at any point x naught y naught if for every epsilon positive there exists a delta positive such that whenever x minus delta this distance becomes less than delta y minus y naught modulus less than delta, that implies fxy minus fx naught y naught this distance becomes less than epsilon। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ x naught y naught if the simultaneous limit exists and is equal to its functional value at x naught y naught, यानी कि फंक्शन की लिमिट x naught y naught ते फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं एट एनी पॉइंट x naught y naught, दैन वी से दैट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हुण असी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चैक करनी है। एफ एक्स वाई है एक्स वाई साइन ऑफ 1/x वैन x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू है 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। असी ओरिजिन के उपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चैक करनी है। साडे कोल फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 1/x वैन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो सपोज एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर आर्बिटरी पॉजिटिव नंबर है सच दैट x माइनस 0 न्यूमेरिकली लेस दैन एप्सिलॉन स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 0 इज लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन सच दैट एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। नो क्योंकि फंक्शन की जी लिमिट है वैल्यू है वो 0 है, तो असी फंक्शन ते वैल्यू दोनों का डिफरेंस देखते हैं विच मस्ट बी लैस दैन एप्सिलॉन। एफ एक्स वाई माइनस 0 क्योंकि 0 की लै रहे हैं, 0 फंक्शन की वैल्यू लै रहे हैं, तो एफ एक्स क्योंकि इस डेफिनेशन के जो है साढ़े को एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट यानी कि फंक्शन की एक्स नॉट वाई नॉट तो वैल्यू लैनी होंगी है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई साइन ऑफ 1/x। सानू पता है इसमें असीं मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करिए तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इंटू मॉडुलस ऑफ साइन बाय 1/x, बट साइन की जी मैक्सिमम वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1, तो दिस प्रोडक्ट इज लेस दैन इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई मॉडुलस। एक्स मॉडुलस लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 मॉडुलस इंटू वाई माइनस 0 modulus. This is less than epsilon square root of epsilon. This is also less than square root of epsilon. तो क्या है सारे को epsilon। तो एफ एक्स वाई माइनस 0 becomes less than epsilon whenever x minus 0 is less than epsilon square root। तो असी डेल्टा इक्वल टू square root of epsilon ले लीए तो साढ़े को की होएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट है साढ़े को एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर वाई स्केयर वैन एवर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 वैन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 0 पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू 0 है, अदरवाइज फंक्शन है एक्स वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर वाई स्केयर। असी इसकी कंटिन्यू चेक करनी है तो फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर सपोज एक्स माइनस क्योंकि एक्स वाई 0 0 अप्रोच करता है तो एक्स माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन तो वाई माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन। असी इस तरह का एप्सिलॉन लेने हाँ तो एफ एक्स वाई माइनस 0 फंक्शन की वैल्यू तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू तो फंक्शन का डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 0 विच इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर वाई स्केयर। असी इस एक्स बाहर कट लेने तो अब की रहेगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर। दिस इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1 क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नोमिनेटर। दिस इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज लेस दैन इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, बट मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस दैन एप्सिलॉन। तो दिस मीन्स एफ एक्स वाई माइनस
value of function is becomes less than epsilon whenever x minus 0 becomes less than delta, delta is equal to epsilon, तो फंक्शन की है कंटीन्यूस है, क्योंकि फंक्शन की जी है कंडीशन कंटीन्यूटी वो सैटिस्फाई हो रही है। नैक्सट है असी इस फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स वाई है इज इक्वल टू 2x वाई स्केयर अपॉन एक्स क्यू वाई स्केयर वैन एवर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन 0 है वैन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो असी की करते हैं, देखो दूसरा तरीका है कि फंक्शन कंटीन्यूस चेक करने का दूसरा तरीका है कि फंक्शन की लिमिट कढो किस पॉइंट से एक्स वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो तो फंक्शन की वैल्यू जेकर दोनों इक्वल ने तो फंक्शन कंटीन्यूस है। जिमें कि प्लस टू क्लास पढ़िया सी तो किसी फंक्शन का कंटीन्यूस होने लिए की सी कि फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों इक्वल होनी चाहिए ने, तो असीं कहते सी फंक्शन की है कंटीन्यूस। हुण असीं फंक्शन की लिमिट कढ़ते हैं वैन एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, तो असीं पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स, the limit of this function f x y becomes equal to limit of 2x y square upon x cube y cube whenever x y approach to 0 0 and y is equal to put करिए ऐसी m x then y square becomes 2m x cube बन जाएगा। डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x cube plus m cube x cube, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x cube ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਐਜ਼ x approach to 0 2m square upon 1 plus m cube, that this limit will be equal to 2m square upon 1 plus m square। दिस इज नॉट यूनीक, ये डिपेंड करती है कि वैल्यू m की है, इस करके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 0 तो इस करके फंक्शन कंटीन्यूस नहीं है। नैक्सट है साढ़े को फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वैन एवर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, तो फंक्शन 0 है वैन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो असी ओरिजिन के उपर इस फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन दो तरीके ने, चाहे तो डेल्टा एप्सिलॉन मैथड यूज़ कर लो, चाहे इसकी जी हैगी है बाय यूजिंग द लिमिट कॉन्सैप्ट। असी इसकी लिमिट कढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू कढ़ लेने हैं, जेकर दोनों ही इक्वल ने तो फंक्शन कंटीन्यूस होएगा, जो दोनों इक्वल नहीं तो फंक्शन डिसकंटीन्यूस होएगा। तो स्टूडेंट्स ये सीगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये असी लिमिट एंड कंटीन्यूटी दोनों असी जिहड़ियां है टॉपिक कवर किए हैं, तो तुसीं इस रिलेटेड सारे सम करने ने। तो नैक्सट असीं शुरू करांगे पार्शल डेरिवेटिव्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।